بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ NAN24 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں عریض حبیب۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقاوان کا کہنا ہے کہ آر پار کا دعویٰ تھا مگر کچھ نہ ہوا، مریم بی بی اور PTM کے حصے میں صرف خواری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان نے ابھی تک کرونا وائرس کی ویکسین کا بندوبست ہی نہیں کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے جو بھی چندہ جمع کیا وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کیا۔ شدید دھند اور سردی کے ساتھ ساتھ ناروال پولیس کو چور ڈاکوؤں کی جانب سے کھلے عام چیلنجز، روک سکو تو روک لو۔ ناروال پولیس تھانہ سٹی کی حدود محلہ عباس نگر میں رات کے چوری کی بڑی وارداتیں، چور دھندلے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 گھروں کا صفایا کر گیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن ناروال کا چھاپا، TMA کا سب انجینئر رشوت خوری کے الزام میں گرفتار۔ حبیب کو انسپیکٹر اینٹی کرپشن ناروال شہباز چیمہ نے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ فیصل آباد سے خیرپور جانے والی فیملی گوجرا ٹوبا موٹر وے M4 پر حادثے کا شکار۔ جہانیہ پاور میڈیا گروپ جہانیہ کا پہلا اجلاس زیر صدارت فیاض طفیل نجی ریسٹورنٹ جہانیہ میں منعقد ہوا۔ گوجرانوالہ میں عیسائی لڑکی نے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ گوجرا میں انوکھا جنازہ، فوت ہونے والے شخص کو بینڈ باجے، پھولوں کی پتیاں اور نوٹ نچھاور کر کے دفن کیا گیا۔ پاکستان کے دورے پر آئی جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم اور دیگر سٹاف کا کرونا ٹیسٹ کا نتیجہ منفی آنے کے بعد ٹیم نے کراچی جم خانہ میں پریکٹس شروع کر دی۔ اشنا شاہ شادی کے لیے مرد میں کون سی خصوصیات دیکھنا چاہتی ہیں؟ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تم سے ذرا صبر نہیں ہوتا؟ کیا؟ کچھ ہی دن تو رہ گئے شادی میں۔ کیا کروں؟ وہ خوشبو، وہ رنگ، وہ ذائقہ۔ ذائقہ؟ چائے کا؟ تم چائے پینے کے لیے آئے ہو؟ ہاں ایکچولی وہ میں زیادہ باتیں مت کرو، اندر آؤ، یہیں ویٹ کرو اور باہر مت آنا۔ یہ لیں آپ کی چائے، اور یہ بھی لے جائیں، خود بنا کے پیتے رہنا۔ قمر چائے رشتوں میں لائے چاہتوں کا رنگ، خوشبو اور ذائقہ۔ سارا، ارے جلدی کرو، جلدی جلدی، یہ تو لیتے جاؤ۔ بابا انکل وہ میں تو چائے بھی نہیں آیا تھا۔ دیکھا میری بیٹی کی چاہت کا کمال۔ یہ تمہاری بیٹی کا نہیں، قمر چائے کا کمال ہے۔ کیونکہ چاہت سے بنتی ہے قمر چائے۔ بلیٹن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ آر پار کا دعویٰ تھا مگر کچھ نہ ہوا، PTM اور مریم کے حصے میں صرف خواری ہے، فردوس عاشقاوان۔ لاہور پریس کلب میں صحافی تنظیموں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فردوس عاشقاوان کا کہنا تھا کہ نومبر اور دسمبر کیا، آدھا جنوری بھی گزر گیا، کچھ نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے فردوس عاشقاوان نے کہا
کہ गढ़ी खुदा बख्श में नवाज शरीफ को तकरीर की इजाजत ना मिली, जबकि मरियम नवाज चचा के आंसू पोंछने अदालत गई थी। चचा के लिए मशवरा है कि उनके कहने पर मत अमल करें, ये खुद डूबे हैं और आपको भी ले डूबेंगे। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हुकूमत PDM के साथ डायलॉग के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि सोशल मीडिया की वजह से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, आपके टैक्स के पैसों से इश्तिहारात को एक मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने अभी तक वैक्सीन का बंदोबस्त ही नहीं किया, बिलावल भुट्टो। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि कोरोना वायरस की वैक्सीन ना लेने के बायस हम कोविड-19 के मुकाबले पर खित्ते में पीछे जाते नजर आ रहे हैं। बिलावल का कहना था कि कोरोना का मुकाबला करने के लिए हुकूमत आज भी कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ने वैक्सीन की इंपोर्ट का बंदोबस्त नहीं किया, जबकि खित्ते के दीगर ममालिक कोरोना वैक्सीन की इंपोर्ट का काम तेजी से कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि हमें लग रहा है कि कोरोना वैक्सीन के लिए हमें बहुत इंतजार करना पड़ेगा। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स को ही वैक्सीन की इजाजत देगी और हमने जो चंदा जमा किया वो कानून के दायरे में रहकर किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन के एहतजाज पर कहना था कि एहतजाज जरूर करें, लेकिन जमहूरी अंदाज में एहतजाज करें। 18 जनवरी को पीपल्स पार्टी और नून लीग हिसाब देती है तो 19 को एहतजाज समझ आता है। उन्होंने कहा कि हमने जो भी चंदा जमा किया वो कानून के दायरे में रहकर किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर अपोजिशन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगी तब भी मुज़ाकरात होंगे। अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात का कोई अंदिया मौसूल नहीं हुआ। और नाज़रीन, अब आपको मज़ीद अपडेट्स करते चलें कि शदीद सर्दी और धुंध के साथ साथ नारोवाल पुलिस को चोर और डाकुओं की जानिब से खुलेआम चैलेंजेस, रोक सको तो रोक लो। शहरी इलाकों की नकली तलाई ज़ेवरात और दीगर कीमती सामान से महरूम पुलिस का रवायती अंदाज, ख्वाबे खरगोश की नींद में मस्त रही। नारोवाल पुलिस थाना सिटी नारोवाल की हदूद शहरी मियां नजमुल हसन और मियां रफाकत हुसैन के घर रात चोरी की बड़ी वारदातें, चोर लाखों की नकली तलाई ज़ेवरात और दीगर कीमती सामान लेकर फरार होने में कामयाब। मुतासरा नजमुल हसन ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि हम सब घर के लोग मेहमान गए हुए थे तो चोरों ने इसी का फायदा उठाया और रात को हमारे घर के ताले तोड़कर घर का सफाया कर गए। दूसरे रोज सुबह सवेरे जब आकर देखा तो घर में सब सामान बिखरा पड़ा था। 14 तोले सोना, 3 लाख रुपए की नकदी और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए थे। इत्तला देने के बावजूद पुलिस 2 घंटे ताखीर से पहुंची। 4 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। आए रोज बढ़ती हुई वारदातों से शहरी खौफो गम में मुब्तला। अहले इलाका का DPO नारोवाल, RPO गुजरावाला और IG पंजाब से फौरी नोटिस का मुतालबा। और महकमा एंटी करप्शन नारोवाल का छापा, TMA का सब इंजीनियर रिश्वतखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार। FIR के मुताबिक ठेकेदार गुलाम अब्बास ने इंस्पेक्टर एंटी करप्शन शहबाज सीमा को दरख्वास्त दी कि TMA का क्लर्क इफ्तिखार और सब इंजीनियर हबीबुल्लाह ने ठेकेदार से 80,000 रिश्वत बटोरी थी, मगर गलियों नालियों की तामीरात के बिल के चेक नहीं दे रहे और चेक देने के लिए मज़ीद 15,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं, जिस पर शहबाज टीमा इंस्पेक्टर एंटी करप्शन ने अपनी टीम के हमरा छापा मारा तो सब इंजीनियर हबीब रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जिस पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया और मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फैसलाबाद से खैरपुर जाने वाली फैमिली गोस्टा टोबा मोटरवे M4 पर हादसे का शिकार। कार में 6 अफराद सवार थे। कार की ट्रॉलर से टक्कर, जिसके नतीजा में 3 बच्चे और 1 खातून जान की बाजी हार गए, जबकि 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक सईद इकबाल की इस रिपोर्ट से। जी सईद इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया पेश है। गोजरा टोबा टेक सिंह मोटरवे M4 पर कार की ट्रेलर से टक्कर, जिसके नतीजा में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा धुंध के बाइस पेश है। जख्मी और मरने वाले एक ही खानदान से थे। जाँ बहक होने वालों में 9 साल हज़ैफा, 13 साल मिश्रा और 3 साल हिफ्सा और बच्चों की वालदा 35 साल साइमा भी शामिल है, जबकि जख्मी में बच्चों के वालिद 40 साल ज़ुबैर और उनका 7 साल बच्चा भी शामिल है। हादसा का शिकार होने वाली गाड़ी में मौजूद बदनसी फैमिली फैसलाबाद से खैरपुर जा रही थी कि हादसा का शिकार हो गई और ये फैमिली खैरपुर की ही रहायशी थी। वाक़या की इत्तला मिलने पर मोटरवे पुलिस और SQO 1122 की टीम में जाए हादसा पर पहुंच गई
और जख्मियों को और नाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक सिंह मुंतकिल कर दिया गया। हादसा इतना खौफनाक था कि गाड़ी के परचे उड़ गए। कैमरा टीम कैमरा मलिक सईद इकबाल, ब्यूरो चीफ NN 24 न्यूज HD फैसलाबाद। जी मलिक सईद इकबाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट्स कर रहे थे। जहानिया पावर मीडिया ग्रुप का पहला इजलास ज़ेर सदारत फयाज तुफैल निजी रेस्टोरेंट जहानिया में मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज़ हाफिज फैसल ने तलावत कलाम पाक से शुरू किया और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत चौधरी शकील गुज्जर ने हासिल की और मीटिंग का एजेंडा मलिक नासिर इलियास ने पेश किया। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा नदीम मुस्तफ़ा। जी बिल्कुल, पावर मीडिया ग्रुप जहानिया का पहला इजलास ज़ेर सदारत फयाज तुफैल निजी रेस्टोरेंट जहानिया में मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज़ हाफिज फैसल ने तिलावत कलाम पाक से किया। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत चौधरी शकील गुज्जर ने हासिल की। मलिक इलियास नासिर ने मीटिंग का एजेंडा पेश किया और 2021 की पॉलिसियों और सरगर्मी की तजवीज़ मेंबरान के सामने रखी और राय तलब की गई, जिस पर लीडर एडवाइज़र मलिक ख्याल निज़ामी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि गरीब मुस्तहिक़ अफराद को पावर मीडिया ग्रुप जहानिया के प्लेटफार्म से जुड़े तमाम मेंबरान को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और आपकी निशानदाही और सदर फयाज तुफैल की हिदायत पर मुस्तहिक़ मज़लूम लोगों को मुफ्त कानूनी इमदाद मुहैया की जाएगी और पावर मीडिया ग्रुप के मेंबरान के लिए फिजिकली प्रैक्टिकली हम किस्म ताउन दरकार होगा। मोहसिन क्लियर एडवोकेट ने मलिक फयाज के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा कि मेरे हम किस्म खिदमात और ताउन ग्रुप के साथ है। तमाम नायब सदर शहजाद अली ने कहा कि हमें खुशी है कि मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी तरह मुस्तकबिल में भी हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा। सीनियर नायब सदर मलिक इलियास नासिर ने कहा कि जहानिया के सभी इदारे करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। बिलखसूस वापदा तहसील ऑफिस और सर्कल के थाने तमाम लोगों के लिए बेहद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, जिस पर मेंबरान की इत्तफाक राय से पावर मीडिया ग्रुप का एक शिकायत सेल कायम कर दिया गया, जिसका टास्क सदर साहब की ज़ेर निगरानी में 4 रुकनी कमेटी मॉनिटर करेगी और करप्शन और लाकानूनियत और बदनवानी की शिकायत की खुफिया तहकीकात करके मरकज़ी सदर को रिपोर्ट करेगी। रिपोर्ट की रोशनी मरकज़ी सदर जनरल सेक्रेटरी के मुशावरात से मुतल्लिका इदारे के सरबराह से रब्ता करके इसे हल करवाया जाएगा। 9 मुंतखब मेंबरान से गुफ्तगू करते हुए सदर फयाज तुफैल ने कहा कि पावर मीडिया ग्रुप जहानिया का लगाया जाने वाला पौधा अब एक कद आवर दरख्त बन चुका है, जिसको आप साहब ने अपनी मेहनत, लगन और कोशिश से परवान चढ़ाया है। मैं अहम किरदार अदा किया। मैंने खामोशी से बिना पब्लिसिटी करते हुए लोगों की इज़्ज़त, नफ्स और सफेद पोशी को भी मलूज़ खातिर रखते हुए इनकी खिदमत की है और अपने इलाके मसाइल को भी बराह रास्त अरबाब इख्तियार तक पहुँचाया और अब भी पावर मीडिया ग्रुप के तवसत से पहुँचाते रहेंगे। मज़ीद कहा कि हमारे पास कलम की ताकत है, जो मज़लूमों बेकसों के लिए भी ना चल सके तो इस कलम का क्या फ़ायदा है। हमारी जीदोजहद अवाम के लिए आपसी भाईचारे और इसी इत्तेहाद के लिए जारी रहनी चाहिए और पावर मीडिया ग्रुप का ये सफ़र जारी रहेगा और हमें मरूफ वकाला की अहमियत भी हासिल है, जो कि हमारी टीम का हिस्सा भी हैं। जबकि शिरका से असलम इसास अलिया जरगर और मोहिउस्सलाम, हमजा भट्टी, शकील गुज्जर, चौधरी हमजा भट्टी, इमरान भट्टी, बिलाल रफीक, आसिफ रशीद, डॉक्टर इंतज़ार, इमरान मुगल, हाफिज फैसल, चौधरी आशिफ गुज्जर, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद मुनीर, शहजाद अली, चौधरी शकील गुज्जर ने भी गुफ्तगू की और अपने ख्यालात का इजहार किया और मुख्तलिफ तजवीज़ात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए क़यादत के फैसले की तहदीद की और पावर मीडिया ग्रुप के जहानिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जी बहुत शुक्रिया नदीम मुस्तफ़ा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और गुजरांवाला में ईसाई लड़की ने इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत मखदूम मिल्लत नारोवाल, मरकजी चेयरमैन तहरीक इस्लाह मिल्लत पाकिस्तान, अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान डिवीजन गुजरांवाला अल्हम्दुलिल्लाह ईसाई बेटी को कलमा पढ़ाते हुए बेटी ने ईसाई मजहब छोड़कर दीन इस्लाम को मेरे रूबरू कबूल किया। मारूफ कानूनदान चौधरी मोहम्मद याकूब अवैसी एडवोकेट साहब की मौजूदगी में बेटी को खुदा ताला की वहदानियत और ताजदार ख़त्म नबूवत रसूल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का पैगाम देते हुए बेटी का इस्लामी नाम मरियम फातिमा रख दिया है और इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खात्मा भी बना दिया है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इसको इस्लाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में इस्तकामत अता फरमाए। और नाज़रीन, अब आपको गोजरा से आगाह करते चलें कि गोजरा में अनोखा जनाजा
فوت ہونے والے شخص کو بینڈ باجے، پھولوں کی پتیاں اور نوٹ نچھاور کر کے دفن کیا گیا۔ نماز جنازہ کبوترا والے قبرستان میں ادا کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک سعید اقبال کی اس رپورٹ سے۔ جی سعید اقبال آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ گوجرا میں انوکھا نماز جنازہ تھا۔ گوجرا میں محمد سردار علی کو ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے وفات پا جانے پر ان کے عزیز و اقارب نے بینڈ باجے کے ساتھ دفن کیا۔ یہ کام انتظامیہ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مرنے والے کے پیر کے کہنے پر یہ کام کیا گیا۔ سردار علی کے نماز جنازہ گوجرا کے سب سے بڑے قبرستان کبوترا بالا میں ادا کیا گیا اور تدفین سردار علی کی ملکیت میں کی گئی۔ جہالت کا نیا دور، نماز جنازہ میں بینڈ باجے، پھولوں کی پتیاں اور نوٹ نشاور کیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک سعید اقبال، بیورو چیف NN24 نیوز HD فیصلہ آباد۔ جی ملک سعید اقبال بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم نے کراچی جم خانہ میں پریکٹس شروع کر دی۔ کرکٹ ساؤتھ افریقہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کراچی پہنچنے کے بعد کھلاڑیوں اور آفیشلز کے کورونا ٹیسٹ ہوئے تھے۔ اسکواڈ میں شامل 27 کھلاڑیوں اور عملے کے 11 افراد کے کورونا ٹیسٹ کے نتائج منفی آئے ہیں۔ اور کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد جنوبی افریقہ کی ٹیم کراچی جم خانہ میں سخت سیکیورٹی میں ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم کی ٹریننگ کے دوران میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ جنوبی افریقن ٹیم کے کپتان کل ورچوئل پریس کانفرنس کریں گے۔ اور اشنا شاہ شادی کے لیے مرد میں کون سی خصوصیات دیکھنا چاہتی ہیں؟ اشنا شاہ کا شمار پاکستان کی خوبصورت اور باصلاحیت اداکاراؤں میں کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی اداکارہ جو اپنی ورسٹائل اور غیر معمولی فنکارانہ صلاحیتوں کی بدولت مداحوں کو متاثر کیے جانے کے فن سے بخوبی واقف ہے۔ تاہم اشنا شاہ کس قسم کے مردوں سے متاثر ہوتی ہے اور اپنے ڈریم بوائے سے متعلق کیا خیالات رکھتی ہیں، اس حوالے سے ایک حالیہ انٹرویو میں اداکارہ اشنا شاہ کا کہنا تھا کہ جہاں تک دکھنے کی بات ہے تو میرے لیے مسکراہٹ سب سے زیادہ اہم ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔